السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ملازمین سے بات نہ کرنا، KCR کی ضد یا پھر حکمت عملی؟ گورنر کے سرگرم ہونے پر خاص آرائیوں کا بازار گرم۔ حیدرآباد کے فارماسٹی کے لیے مرکز گرانٹ جاری کرے، مرکزی وزراء کو وزیر KTR نے لکھا مکتوب۔ حضور نگر ضمنی انتخاب پیر کو ہوگی رائے دہی، تمام انتظامات مکمل، 28 امیدوار میدان میں، 2 لاکھ سے زائد ووٹرز لیں گے حصہ۔ گندگی پھیلنے پر عوام پر بلدیہ کا چالان، بلدیہ کی جانب سے پھیلائی جانے والی گندگی پر کون کرے گا چالان؟ اور پنجاگٹا قتل کا معمہ حل، 3 ملزمین گرفتار، کمشنر پولیس کی پریس کانفرنس۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملازمین سے بات چیت نہ کرنے، KCR کا فیصلہ ان کی ضد ہے یا حکمت عملی؟ اس پر پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی سیاستداں نہیں چاہتا کہ اس کا سیاسی گراف کمزور پڑ جائے، تو KCR کی خاموشی اور گورنر کا سرگرم ہونا سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ کوئی بھی نادان ہو یا پاگل، وہ اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مارتا، تو پھر KCR جیسے شاطر سیاستداں RTC ہڑتال کو لے کر اپنی سیاسی طاقت پر کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں سے جاری ہڑتال کے اتار چڑھاؤ سے یہ صاف ہے کہ RTC ملازمین کی ہڑتال نہیں ہے بلکہ سیاسی کھیل ہے۔ اس کے پیچھے خود KCR ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی اور۔ اس پر کئی پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ RTC ہڑتال KCR کی ضد ہے یا حکمت عملی ہے، اس کا خلاصہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ تلنگانہ کی تحریک چلانے والے KCR کے لیے 50,000 ملازمین کا مسئلہ حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ملازمین سے بات چیت سے انکار کرنا اور عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کے پیچھے KCR کی حکمت عملی ہی ہو سکتی ہے۔ گورنر کی تبدیلی کے بعد تلنگانہ BJP پارٹی میں جان آ گئی ہے۔ RTC معاملے میں BJP پیش دکھائی دے رہی ہے۔ حالیہ چند دنوں میں گورنر کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ RTC ہڑتال پر حکومت سے جواب طلبی اور یونیورسٹی فنڈز کے بارے میں حکومت کو ہدایت جاری کرنا، اور تو اور کیب ڈرائیورز کی ہڑتال کو ختم کروانے کے لیے گورنر کی مداخلت نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ KCR کے خلاف مرکزی سطح پر شکنجہ کسنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، ادھر گورنر بھی سرگرم ہو چکی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ مغربی بنگال کے بعد KCR مرکز کا اگلا نشانہ ہوں گے۔ تلنگانہ میں BJP راست طور پر سیاسی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی، اسی لیے وہ انتظامیہ کو بحران کا شکار بناتے ہوئے سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ BJP ایک کے بعد ایک مسئلے کو منظر عام پر لانے کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، جس کے ذریعے TRS کو سیاسی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ پتہ چلا ہے کہ BJP کی اس سازش میں TRS کے چند قائدین بھی شامل ہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ KCR شروعات میں ہی اس سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی سیاسی سازشوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں وہ کتنے کامیاب ہوں گے یہ دیکھنے لائق ہوگا۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ KCR مرکز میں ان کے خلاف شروع ہونے والی سرگرمیوں کو کچھ وقت تک ٹالنے کے لیے RTC مسئلے کو طول دے رہے ہیں، تاکہ ان کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو روکنے کے لیے مناسب راستہ تلاش کر سکیں۔ اس چوہے بلی کے کھیل میں عوام کا برا حال ہونے والا ہے۔
हुकूमत का आरटीसी हड़ताली मुलाजमीन के साथ बातचीत पर तजस्सुस बरकरार है। इतवार के दिन प्रगति भवन में वजीर ट्रांसपोर्ट की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव, महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि अदालत के समाअत में उठाए गए उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हुजूर नगर इंतखाबात के बाद ही इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इंडस्ट्रीज के टी रामाराव ने वजीर कॉमर्स वो इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल और वजीर पेट्रोल व कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए मकतूब में रियासत में फार्मा और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज की ग्रांट इन एड जारी करने की दरख्वास्त की है। पीयूष गोयल को लिखे गए खत में इन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी अमलावरी के लिए 1318 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड दरकार है। इन्होंने फार्मासिटी प्रोजेक्ट वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए दरकार कवायद की तकमील कर ली गई है। इसके कीमियाई कदोकाल को भी इन्होंने बयान किया है। रियासती वजीर ने माहौलियाती क्लियरेंस और दीगर दरकार दस्तावेजात की तकमील का भी हवाला दिया। इन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए 64,000 करोड़ रुपए के तखमीनी सरमायाकारी होगी और 5,60,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए खत में इन्होंने हैदराबाद फार्मासिटी की तफसीलात को तहरीर किया। इन्होंने इन मरकजी वज़रा से कहा कि वो रियासत को सनती तौर पर तरक्की देने और फार्मा की सनत में देसी मुसाबिकत को बेहतर बनाने इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दें। कांग्रेस पार्टी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला की बदउनवानी के सबूत का इनकम टैक्स महकमे ने इंकशाफ किया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को किस तरह लूट रहे हैं, इसका खुलासा किया गया है। इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के इंकशाफ पर केसीआर को जवाब देना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हवाला के तहत करोड़ों रुपए की बदउनवानी हुई है। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर सब कॉन्ट्रैक्टर्स का काम दिया जा रहा है। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जितनी रकम लूटी गई है इसको वापस करें। केसीआर को 1 मिनट भी ओहदे पर रहने का हक नहीं है। 3 लाख करोड़ का कर्ज लाकर किया गया काम है, इसका खुलासा करें। निजाम की मदद के लिए पाएगा खानदान की तरह केसीआर के लिए ये आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इन्होंने कहा कि इस बदउनवानी के खिलाफ एक तहरीक शुरू करेंगे। अवाम ही केसीआर को डिसमिस करेगी। इन्होंने कहा कि इन बदउनवानी के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की जाएगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह की हुकूमत चल रही है वो अफसोस की बात है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे पर 48,000 मुलाजमीन को डिसमिस करने का फैसला लेना मुनासिब नहीं और हुकूमत अदालत के अहकामात को खातिर में नहीं ला रही। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, गुरूर और तकब्बुर की हुकूमत है। बीजेपी इस मामले में मुलाजमीन का साथ देगी। इसको मरकजी सतह पर उठाया जाएगा। इस हुकूमत के गुरूर को तोड़ा जाएगा। टीआरएस हुकूमत की नीयत खराब है। हुकूमत ने ही आरटीसी को नुकसान के हवाले किया है। इस मामले को मरकजी हुकूमत संजीदगी से लेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की हिमायत में पीर को कांग्रेस पार्टी के प्रगति भवन घेराव प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। इन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात को हल करने में नाकाम हो चुकी है और लाखों अफराद केसीआर के आमराना रवैये और हुकूमत के रद्द अमल को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों से प्रगति भवन के घेराव प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के लिए इंसाफ की जद्दोजहद के हुसूल तक कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करेगी और हुकूमत को मजबूर कर देगी कि वो आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करें। तेलंगाना में हुजूर नगर असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर के दिन रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि इस इंतखाब में 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायदही में 2,20,108 वोटर्स वोट डालेंगे।
पीर के दिन सुबह 7 बजे ता शाम 5 बजे तक राय दही होगी। पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। रजत कुमार ने बताया कि शराब की दुकानें बंद रखने की हिदायत दी जा चुकी हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इंतखाब में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला है। तेलंगाना हुकूमत ने मौसमी बहरान के पेश नजर तजवीजी कामों के टेंडर्स रोकने का अहम फैसला लिया। ज़राए के मुताबिक आबपाशी प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा इमारत व शौरा के शाहराहों के काम भी नहीं होंगे। इस सिलसिले में तमाम दीगर महकूमे जात के इंजीनियरिंग शोबे को हुकूमत की तरफ से सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया है कि तजवीजी कामों के लिए टेंडर्स तलब ना करें। हुकूमत ने पीने के पानी और दीगर जरूरी प्रोग्राम को इससे मुस्तस्ना रखा है। मुख्तलिफ महकूमे में बिल्स के बकायाजात की अदायगी ना होने की वजह से पहले ही काम ठप हो चुका है। ऐसे में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नजर किराए की बसेस के 3 माह के बकायाजात की अदायगी बाकी है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने मौसमी बहरान के पेश नजर रियासती बजट में 20% की कटौती की है। तेलंगाना रियासत के तालीमी इदारों की दशहरा तातीलात के बाद 21 अक्टूबर पीर से कुशादगी अमल में आएगी। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर टी विजय कुमार ने बताया कि आरटीसी हड़ताल की वजह से दशहरा तातीलात में तोसी के बाद पीर से स्कूल दोबारा काम करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर व सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि जूनियर कॉलेज भी पीर से काम करेंगे। इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, MBA और MCA और दीगर कॉलेजेस पीर से खुले रहेंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मामला चल रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने से शहर के बेशतर इलाकों में कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदगी की वजह से अवाम को हिफ्ज़ान सेहत का खतरा पैदा हो गया है। इस पर तवज्जो देने के बजाय बल्दिया अवाम की गलतियों पर नजर रख रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि बल्दिया अब तक अवाम पर चालानात आयद करते हुए 3 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बल्दिया स्वच्छ नमस्कार और सफाई के नाम पर खुसूसी मुहिम चलाते हुए अब तक 11,500 से ज्यादा चालानात काटे हैं। सड़क पर कचरा फेंकने और पानी बहाने, कम माइक्रोन वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के अलावा तामीराती मलबा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ तो 50,000 ता 1 लाख तक चालानात काटे गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को सुधारने के लिए बल्दिया तो अवाम से जुर्माना वसूल कर रही है, तो फिर कचरे की नकासी बराबर ना होने की वजह से सड़कों पर कचरा फैल जाता है। इस इलाके में ताफून फैलता है। इसके लिए बल्दिया पर कितना जुर्माना आयद करना चाहिए, इसका भी खुलासा अगर हो जाता तो शायद अवाम के साथ साथ बल्दिया के कामकाज भी सुधर जाते। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मुलाजिमीन के लिए 21 नवंबर से हेल्थ स्कीम का आगाज होगा। बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि मुस्तकिल मुलाजिमत करने वाले इस स्कीम के लिए मुस्तहक होंगे। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत मुलाजिम अपनी अहलिया और वालिदैन और बच्चों का फीकस 3 लाख रुपए तक इलाज करवा सकते हैं। इन्होंने कहा कि GHMC में जुमला 5,165 मुलाजमीन हैं, जिनमें 2,375 मुलाजमीन ने अपनी तफसीलात इस स्कीम के लिए दाखिल कर दी हैं। लोकेश कुमार ने कहा कि बाकी मुलाजमीन भी अपनी तफसीलात 30 अक्टूबर तक जमा करवा दें ताकि इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकें। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से कहा है कि वो NRC से खौफ न खाएं। इन्होंने मुल्क को फिस्ताई और दकियानुसी टोले से बचाने के लिए अपने हक के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। बैरिस्टर अवैसी हफ्ते के दिन महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के लिए औरंगाबाद में इख्तितामी मरकजी जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि NRC के नाम से मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि मुसलमान इससे डरने घबराने वाले नहीं हैं। फिस्ताई ताकतें इस मुल्क को जिस सिमत ले जा रहे हैं, इसके सबब बहुत जल्द शिकस्त उनका मुकद्दर बन जाएगी और तारीख में उनका एक स्याह बाब रहेगा। इन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की इस इलाके से कामयाबी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलित और दिगर तबकात और औरंगाबाद को तरक्की की सिमत देखने वालों की कामयाबी है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में मुकाबले की हिम्मत नहीं रही। बीजेपी और शिवसेना के साथ हकीकत में अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन्होंने इस तारीखी शहर से मुकाबला करने वाले मजलिस के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी, डॉक्टर नासिर सिद्दीकी और वर्ण बोर्डे को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इन्होंने चंद मफादात हासिला के इशारों में शहरियान औरंगाबाद के इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश करने वालों को सख्त इंतबाह दिया। महाराष्ट्र असेंबली के लिए पीर के दिन रायदही मुकर्रर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अब आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी मां और बहनों से गुजारिश है कि 21 तारीख को आप बाद नमाज फजर अपने घर में, यकीनन बुजुर्ग हैं, उनके इंतजाम, खाने का इंतजाम करके उन तमाम बुजुर्गों को लेकर आप पोलिंग बूथ को जाइए और अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। नासिर सिद्दीकी हो, अरविंद बोर्डे हो, डॉक्टर कादरी हो, इन तमाम की कामयाबी का पूरा दारोमदार हमारे पोलिंग परसेंटेज के ऊपर है। मैं खुल से आपसे कह रहा हूं, और जमहूरियत इस बात की आपको इजाजत देती है कि जिस किसी का नाम है वो पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करेंगे। 100% पोलिंग होगी यहां पर औरंगाबाद में इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील के इलेक्शन से ज्यादा पोलिंग होगी, क्योंकि ये असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन से ज्यादा अहम है। ये रियासत का इलेक्शन है। ये औरंगाबाद के शहर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला इलेक्शन है। वो इलेक्शन आसान था, ये इलेक्शन अहम है। ये इलेक्शन में मुकाबला है हमारा बीजेपी शिवसेना से। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एनआरसी को लेकर अलग ऐलान बीजेपी कह रही है कि पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेगी। मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि एनआरसी से पहले अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम शुरू होगा। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैं तहख्खुन देता हूं और आपसे वादा करता हूं कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम बनाई जाएगी, जिसमें वकला होंगे, टीचर्स होंगे, पढ़े लिखे नौजवान रहेंगे। इनकी टीम बनाकर हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद के हर उस शख्स का नाम, चाहे वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी जात से, कास्ट से उसका ताल्लुक हो, उन तमाम के नाम जो अपने घरों में क़याम पजीर है, उनका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम आना चाहिए और आएगा। मजलिस इस सिलसिले में पेशरफ करेगी, मजलिस इस सिलसिले में आपकी रहबरी करेगी और ये काम करेंगे। एनपीआर का पहले काम हो जाएगा, तो फिर जब एनआरसी को लागू करेंगे, एनआरसी का बेस बनेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये बात मैंने यहां पर नहीं कही थी, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर आप तक इस बात को कह रहा हूं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा। इस सिलसिले में हम तमाम को चौकन्ना रहकर मिलकर पूरे जितने हर घर में जो रह रहे उनका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में लिखवाना है और हम खुद इसमें आप तमाम का साथ देंगे, रहबरी करेंगे पूरे जमात के जिम्मेदार। और जो पढ़े लिखे नौजवान, जो वकला, जो टीचर्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस काम में अब हमारा ताउन करना चाहते हैं, पैसों से नहीं, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, ताकि आपके मोहल्ले गली में एक 50 घर की जिम्मेदारी आप ले लो, ताकि उन तमाम 50 घरों के रहने वालों के नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जब आ जाएंगे, तो इनकी जो साजिश है बीजेपी की एनआरसी के नाम पर लोगों को स्टेटलेस बनाया जाए, उनके ही मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की बिना पर उनको स्टेटलेस बनाने की कोशिश इनका मंसूबा है, इसमें हम इनको नाकाम करेंगे।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी की जानिब से इंतजामात को क़तियत देते हुए ज़िली कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। सदरनशीन इस्तक़बालिया कमेटी व रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन महराज की सदारत में इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास इतवार के दिन दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। मोतमद इस्तक़बालिया कमेटी व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी व रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और दीगर अरकान इस्तक़बालिया शरीक इजलास थे। अंदरून और बैरून दारुस्सलाम इंतजामात के लिए तश्कील दी गई कमेटी में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़्ज़म खान, साबिक़ कायद मजलिस बलदी पार्टी मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन व मिर्जा रहमत बेग को शामिल किया गया। जलसे गाह के इंतजामात की कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी मजलिस एस.ए. हुसैन अनवर, नवाज कंपनी के गयासुद्दीन मजीद और वहीदुद्दीन सिद्दीकी पर मुश्तमिल होगी। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, आरटीसी और गेस्ट हाउस उमूर के लिए कमेटी में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मन्नान अकबर और जमील आगाई को शामिल किया गया है। मजलिस की जानिब से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन हर साल की तरह इस साल भी 11 और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में मनाया जाएगा। वज़ीर आला के रिलीफ फंड से 6 मुस्तहिकीन को 1,90,000 रुपए के चेक्स हवाले किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने दारुस्सलाम में ये चेक्स हवाले किए। इन्होंने अवाम को मुमकिना राहत पहुंचाने मजलिस की कोशिशों और नुमाइंदगियों का तज़किरा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने इतवार के दिन शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करके अवाम को राहत पहुंचाई। कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट, टोली चौकी के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया जहां बारिश की वजह से पानी जमा हो गया था। इन्होंने मुतल्लका महकूमे के अहदेदारों को फौरी पानी की निकासी के लिए हिदायतें दी, जिससे मकीनों और राहगीरों को राहत हुई। कादरिया इंटरनेशनल तंजीम के सरबराह सैयद कादरी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर जन्मभूमि मिल्कियत के मुकदमे में फैसला मस्जिद के हक में आएगा। इन्होंने अदालत से हक व इंसाफ की तवक्को जाहिर की। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि चंद गोशे उत्तर प्रदेश असेंबली वक्फ बोर्ड के हवाले से ये बात फैला रहे हैं कि इसने मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जबकि ऐसा नहीं है। जिस मशरूत दस्तबरदारी की बात की जा रही है इसमें कई दूसरे पहलुओं को शामिल किया गया है जिसका निफ्स मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम फरीकों ने अदालत के सामने शवाहिद दलाइल पेश किए हैं वो अपनी नौइयत के लिए एक मिसाल हैं। दीवानी मुकदमात में जिस तरह के दस्तावेजी सबूत पेश किए जाते हैं इनकी मुकम्मल तकमील की गई है, जबकि हिंदू फरीक मिल्कियत का कोई दावा पेश नहीं कर सका। इन्होंने कहा कि अवाम इम्कानी फैसले के बारे में कोई हिजान में मुब्तला न हो, बल्कि इस मुकदमे में हक व सदाकत की कामयाबी के लिए बारगाह इलाही से रुजू हों। पंजागुट्टा पुलिस ने कत्ल की एक वारदात के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद फरार हुए। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नागार्जुना हिल्स के इलाके में मोहम्मद रियासत अली का कत्ल करने वाले अब्दुल रहमान, मोहम्मद अतहर और अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किया, जबकि उनके 2 साथी अहमद और हसन फरार हो गए। इन्होंने बताया कि मकतूल रियासत अली ने 27 जून को अनवर नामी एक शख्स का कत्ल किया था जो मुलजिम अब्दुल रहमान का भाई है। रियासत 5 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था, जिस पर अब्दुल रहमान ने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए अपने साथियों के साथ रियासत अली को तेज धारी वाले हथियारों से हमला करते हुए हलाक कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से मुलजिमीन का पता चलाया। उनका कहना था कि पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक वैन, एक मोटरसाइकिल के अलावा कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को जब्त करके मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुलाजिमीन से बात न करना, केसीआर की जिद या फिर हिकमत अमली, गवर्नर के सरगर्म होने पर सहाराइयों का बाजार गर्म।
حیدرآباد کے فارما سٹی کے لیے مرکز گرانٹ جاری کرے، مرکزی وزراء کو وزیر کے ٹی آر نے لکھا مکتوب۔ حضور نگر ضمنی انتخاب پیر کو ہوگی رائے دہی، تمام انتظامات مکمل، 28 امیدوار میدان میں، 2 لاکھ سے زائد ووٹرز لیں گے حصہ۔ گندگی پھیلنے پر عوام پر بلدیہ کا چالان، بلدیہ کی جانب سے پھیلائی جانے والی گندگی پر کون کرے گا چالان؟ اور پنجاگٹا قتل کا معمہ حل، 3 ملزمین گرفتار، کمشنر پولیس کی پریس کانفرنس۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔